Hello Nehal ji, good evening. Namaste. Hi Africa, how are you? I'm good. Super excited आपसे बात करने के Me लिए. too. Me Absolutely. too. So we'll just give a minute because I see a lot of people joining. So 1 minute रुकते Yeah. हैं. Tell me, how was your day? Very good, very good. And as I say, you're so inspiring, and I can't wait to read these. And only thinking about you, I was so inspired. So I'm sure after end of this conversation, not only me but my listeners would have so much to learn from you, and Thank uh, use that in our own journeys. So I think people will keep coming and joining in. So we'll actually start with, and I just want to thank you first. And we are absolutely thrilled to have you in this live, Nehal ma'am. And you're going to be an asset to our listeners. And I just can't wait to see all what you have accomplished. I, Apreka Jain, welcome you today and look forward for having an incredible session today with you. You being an incredible author, social activist, and a proud mother, and above all, a very, very beautiful and humble human being. Thank you very much, ma'am, for joining in. you. Thank you, dear. So, a line or two, आप कुछ बोलना चाहेंगे listeners को before I give your introduction? No, just start your things. Correct. So for those who don't know little about Nehal ma'am, let me quickly tell that why this show is very special, why today is special, and why tonight we all have assembled and we all are listening to the topic how to support children in their higher education. Nehal ma'am is an established author, and she has two bright children, and we all mothers, we all young mothers really look forward that how she did, because while today her children are in the top institutes of India, but I'm sure the journey was not easy, isn't it? So we will discuss all those. And I was just talking to her some time back. She says the journey is not even easy now, So I think it's an ongoing journey. So we'll just understand from her that how she prepared the tips and how she faced rejections, and basically how she supported her children to become what they are. As I'm saying, they study in the top institute, and absolutely pleasure and proud to host you, ma'am, today. So Nehal Vyarake is a psychology counselor, parenting expert, ICF certified relationship and life coach. She has written 3 parenting books. Since I have 2 hands, it's only 2 books right now. And she has been working as a writer, philanthropist, a social activist. She is winner of Inspire She Award, which is given only to 25 women all over India in March 2020. She is also the most influential author awardee and a Ministry of MSME awardee. Absolutely wonderful, ma'am. She has worked as a journalist, freelancer, and a creative writer for Navbharat Times, Aam Aadmi Magazine, and Accommodation Times, Mumbai. An editor-in-chief for Digital Summary app, editor at Lingual Consultancy, and writer at Blasting News. Currently working as a relationship, parenting, and student counselor with many, many educational institutes and schools. I'm sure, ma'am, your insights and your suggestions might be brightening multiple lives, and you're already touching many lives. She is the founder of children's welfare group Udan, which promotes the educational and cultural development in students and women of India. For 17 years now, she has received an award by Mr. Mukesh Khanna, the famous actor, for exemplary vision and exceptional work in writing and rural upliftment. Parenting is her niche for 22 years now. She has her own success stories in the field, as she has raised two brilliant children who has achieved the most cherished seats in IIT Bombay and IIT Delhi. Such a proud moment. She has 100 success rate. She has 100% success rate of being a mom. She's brought up two well-tempered, well-behaved, successful, and absolutely scholar children. The testimonies of her clients speaks volumes about her work, and she being an exceptional parenting and relationship coach. And you can, I will be posting all her websites in the handle. She's there with us in the video also, and I have all those handles as well. So please do contact her in case you need any kind of counseling at any point in time. Her websites, authornehalvrk.com and purplenest.by nehal.com. We're going to talk more about it, but then, and I will put in the handles in the comment box as well when I post the video. So do contact her. So, ma'am, once again, a very, very warm welcome, and thank you for taking out time.
And without I know everybody's very excited to learn and understand, so tell us about your journey as parenting expert, and which has been your niche for 22 years now, and about your books, as in how it reflects. They're very beautiful books, From Screen to Sky, which is very important, I think, these days when children are all busy in gadgets, and Surf the Waves. Yes. So tell us, ma'am, about your journey, about your books. See, parenting journey is 24 years now, as my son is 24 years old. So my journey began from there. But the most beautiful thing that I did in my past was the foundation of Udan. Okay. जब मैंने उड़ान आई वाज हैविंग इंस्टीट्यूट लाइक आई स्टार्टेड अलोन मैंने अकेले स्टार्ट किया आई यूज्ड टू स्टे इन अ रूरल एरिया सो देयर वाज नथिंग फॉर द चिल्ड्रन दे यूज्ड टू रन हियर एंड देयर ओनली तो उनको देख के मुझे लगता था कि लाइक आई एम फीलिंग सैड दैट आई एम इन सच एन अनडेवलप्ड एरिया तो उसका मैं सैडनेस अपने अंदर रखूं उससे अच्छा है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं सो आई जस्ट स्टार्टेड टू कॉल देम एंड उनको ट्रेनिंग देना मैंने स्टार्ट किया सो आई स्टार्टेड विथ लाइक 20 चिल्ड्रन तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही उस चीज को कर रही थी लाइक 2018 में मैंने लाइक आई मूव फ्रॉम देयर सो वो चीज स्टॉप किया बट दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग लाइक अभी भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि देयर वो जर्नी ऐसी थी आई स्टार्टेड विथ 20 स्टूडेंट्स देन आई नीडेड टू ज्वाइन 10 वुमेन विथ मी मैंने 10 वुमेन एंड गर्ल्स को मेरे साथ ज्वाइन किया बिकॉज देयर यूज्ड टू कम 150 टू 200 चिल्ड्रन टू मी सो मैं अकेले कर नहीं सकती थी सो आई प्लान कि क्यों ना औरों को ज्वाइन करके भी लेकिन मैं बच्चों को मना ना करूं एंड देन वो इस तरह से उड़ान का फॉर्मेशन हुआ सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वहां पे मैंने जो एक्सपीरियंस आई अचीव देयर ना दैट वाज ब्रिलियंट लाइक इतने सारे बच्चों की साइकोलॉजी मैंने रीड की आई हैंडल्ड ऑल ऑफ देम एंड देयर पेरेंट्स आल्सो सो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड अबाउट द चिल्ड्रन और पता नहीं मेरा नीच वही धीरे धीरे होते गया लाइक इन राइटिंग ऑल्सो आई रोट फॉर बुक्स ऑल्सो आई रोट फॉर द चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग ओनली एंड नाउ आई स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट काउंसलर पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट काउंसलर आई एम सो आई डोंट नो आई एंजॉयड अ लॉट मैंने जितना अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए मैंने जितनी लाइक आई हार्ड वर्क सो उतना ही मैंने उन बच्चों के लिए भी किया बहुत लंबी Absolutely. जर्नी है बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसमें एंड इट इज हेल्पिंग मी टुडे एज अ मैम बहुत काउंसलर बहुत ब्यूटीफुल है, और आई थिंक आपको काउंटलेस ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। आपने इतना अच्छा जो कॉज का इनिशिएटिव किया, तो नॉट ओनली आपकी बुक से इंस्पायर लोग होते हैं, आपके एक्शन से भी बहुत इंस्पायर होते हैं। एंड दी और जो आपने जो काउंटलेस ब्लेसिंग्स, आज जैसे आपके बच्चे आईआईटी में, आई एम श्योर जिनको आपने काउंसिल किया होगा वो भी आज बहुत अच्छी जगह पे होंगे, और आईआईटी और नॉन आईआईटी आई एम श्योर बहुत खुश होंगे जहाँ होंगे आपने इतना अच्छा उनको मोल्ड किया होगा। That's an excellent thing, ma'am. Now that we are here and we all know that you are a proud mother. I mean, as I speak to you, I feel so proud that I'm talking to a mom who is mother of two. हम लोग जब हमारे बच्चे यंग होते हैं तो हम लोग इतना सोचते हैं लाइक जो मदर्स इंटरेस्टेड होती हैं कि बच्चों के करियर के लिए मैं सोचती थी मेरा एक बच्चा भी आईआईटी में जाएगा बट देन एक गया उसके बाद जब सेकेंड वाली का 4 इयर्स गैप है तो मैं देखती थी कि इसका क्या होगा पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है कभी कि मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में एंड देन दैट ड्रीम केम ट्रू इट इज सच एन एक्सपीरियंस जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते आई नो, मतलब दैट्स व्हाट ना, तो बट आई एम श्योर आपके वो सालों की मेहनत, सालों की सैक्रिफाइसेस, और शायद ये जो आपने जो इतना अच्छा करा, जो कहते हैं पुण्याई माँ बाप की, तो आई थिंक योर गुड एक्शंस, गुड कर्मास, मतलब आई थिंक इट इज ऑल द काउंटलेस ब्लेसिंग्स व्हिच यू हैव अर्न्ड, तो उसका फल भगवान ने आपको दे दिया, और बहुत ही अच्छा। बट आई एम श्योर, एज आई एम सेइंग, कि आज हमें रिजल्ट तो पता है कि आज आपके दोनों बच्चे आईआईटी में हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, और क्या आपको बचपन में ही लग गया था कि उनमें वो स्पार्क है, या आई एम श्योर कभी उनके नंबर भी कम आए होंगे, आपने उनको कैसे हैंडल करा, मतलब आपने कैसे उनको तैयार करा? मैं बताती हूँ आपको सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस लाइक देखिए सबसे पहली बात पेरेंटिंग के कोई रूल्स नहीं होते बिकॉज एवरी चाइल्ड एंड मदर या फादर हुएवर एवरी चाइल्ड एंड पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिक है, ये ऑलवेज न्यू होता है इट्स यूनिक दैट कॉम्बिनेशन दैट्स व्हाई देयर आर नो रूल्स जब हम किसी चीज को फेस करते हैं कि अपने बच्चे में ये चीज है तो वी नीड टू मोल्ड आवर सेल्फ
जैसे मेरा सन है, उसका रिजल्ट कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आता था, ऑलवेज सेकंड थर्ड नंबर पे रहता था क्लास में भी। और वो अपनी जर्नी में भी 2-3 टाइम्स ऐसा आया जब बच्चे बड़े होते, क्लास 7th में, 8th में, 11th में वो डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ द अदर बॉयज इन द क्लास। तो उसका रिजल्ट माय गॉड 6-7 में तो काफी डाउन चला गया वो था। सो ये होते रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आज अगर अच्छा कर रहा है इन हिज करियर और इन एकेडमिकली, इफ ही इज डूइंग गुड, तो इट डजेंट मीन दैट वो ऑलवेज अच्छा था। बट हमारा उन पे फोकस होना ऑलवेज, मदर का फोकस होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो चिल्ड्रन है, दे डोंट नो द लाइफ, दे डोंट नो एनीथिंग, वो तो अपने केयरलेस रहते हैं। बट जो भी पेरेंट है हु इज केयर टेकर, उसका फोकस्ड होना जरूरी है। एंड बच्चे, हमारे लिए बच्चों का प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि हम उनको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं बच्चों को अपनी लाइफ में, और उनके अपब्रिंगिंग में हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जब जब भी मेरे बेटे का भी जैसे डाउनफॉल हुआ, उसका, उसको फिर से ऊपर लाना, उसका फोकस फिर से क्लियर करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे वो 11th में भी था, इतना इम्पोर्टेंट ईयर था, बट वो डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ द वीडियो गेम, बिकॉज ऑफ द उसका चेंज ऑफ प्लेस। जैसे वो 11th में दूसरे स्कूल में गया तो उसके कारण भी उसका डिस्टर्ब हुआ। बट देन हमारा उतना ध्यान होना चाहिए कि ये डिस्टर्ब हो रहा है एंड इसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, एंड उसको किस तरह से हम एनकरेज करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि बच्चे को हमको फिर से खींच के लाना है टू दैट प्लेस। एक बार वो आईआईटी में गए, उसके बाद मैंने छोड़ा उनको, नाउ यू डू। पर आपने मैम बहुत चल अच्छी बात के बताई कि डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं, चाहे आजकल बुलिंग हो स्कूल में, या कुछ सब्सटेंस हो, आई एम जस्ट सेइंग, या जैसे आप कह रहे हैं चेंज ऑफ प्लेस और ये गैजेट्स वगैरह। आपने बिल्कुल सही बोला कि पेरेंट्स का फोकस रहना चाहिए, और हमको बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे और उनको वो टाइम अटेंशन देना चाहिए। बट आपने स्पेसिफिकली क्या करा, मतलब आप उस बच्चे के साथ बैठते थे, मतलब आपने एग्जैक्टली थोड़ा आप इलॉबरेट करें कि कैसे आप बच्चे को उस हार के जीत के उसको बाजीगर बनाया आपने। थैंक यू। एग्जैक्टली मैं आपसे कहती हूँ, आई वॉज इन सच एन अनडेवलप्ड एरिया जहाँ पे स्कूल्स भी नहीं थे अच्छे और टीचर्स तो थे ही नहीं। लाइक आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के बहुत ही छोटे से प्लेस में रह के इन लोग का स्कूलिंग हुआ। मैंने कभी भी इनकी ट्यूशन नहीं लगाई। वाह। दोनों बच्चे मेरे दोनों साइड में बैठते थे। पहले एक बैठता था, दूसरे को मैंने अपने लैब में लेके भी बैठ के उसको पढ़ाया है, एंड फिर दूसरा, दोनों को मैंने 10th तक तो पढ़ाया है। एंड आई डिड वन थिंग, लाइक इन स्टैंडर्ड 7th और 8th, जैसे वो लोग थोड़े बड़े होते हैं ना, उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं आता कि मैं डिक्टेट देम कि ये करो वो करो, दे डोंट कंट्रोलिंग। लाइक इन हम्म। दैट एज। हम्म। सो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया, ओके यू डू योर स्टडी योर सेल्फ, आई एम जस्ट सिटिंग, मैं अपनी बुक लिख रही हूँ, अपना रीडिंग कर रही हूँ, अपना राइटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए मैंने अपना राइटिंग स्टार्ट किया, तब तक मैंने नहीं किया था। तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ। सो इन दैट वे मेरा ध्यान भी रहता था कि वो कर रहे हैं कि नहीं, और मैंने उनके ऊपर छोड़ा भी। फिर जब रिजल्ट देखा 7th में, अपने आप स्टडी करो, फिर उनको मार्कशीट दिखाया, देखो बेटा अभी चेंज है, आपका डाउन हुआ है, सो यू व्हाट यू नीड टू डू। फिर वो अपने आप ही उनके लाइक वो थिंकिंग प्रोसीजर होता है, हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे और करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट देम एक्सपीरियंस, क्योंकि उस क्लास में हम रिस्क ले सकते हैं, क्लास 7th में 8th में वी कैन टेक द रिस्क। सो उस तरह से वो एक बच्चे को थोड़ा अलग टाइम लगा, 8th 9th में उसने अपने ऊपर ले लिया कंप्लीटली। फिर मैंने नहीं लिया उसकी स्टडीज, जब उसने रिजल्ट अपना उस तरह से ला लिया तो यू डू योर सेल्फ। बट मैं उस पर ध्यान जरूर रखती थी, उसके बिहेवियर पे। जब बच्चा डिस्टर्ब होता है ना तो हमको उसका बिहेवियर दिखता है। अदरवाइज क्या होता है कि उसका अपना फोकस पूरा स्टडीज पे ही है, स्कूल से आ गया, मम्मी मुझे सोना है, अब मुझे उठा देना, मुझे पढ़ना है। सो वो चीज हमको दिखती है कि नो, उसका ध्यान स्टडीज पे है। जब लगता है स्टडीज से ध्यान हट गया, फिर इंटरफेयर करो, फिर देखो क्लास में क्या हो रहा है, टेस्ट की कॉपी देखो। और टीचर्स के साथ 1-to-1 रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनकी टीचर है। तो उससे क्या होता है कि जब ये डिस्टर्ब होता है तो हम उनसे बात करके हम जान सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लासरूम। जब अगर किड छोटा है तो आप उसको पूरी तरह से सब कुछ कर सकते हो, बट जब एक बार उस एज में आता है ना, तो वो हमारा डिक्टेशन उसको पसंद नहीं आता है। अगर आप डिक्टेट करोगे भी तो वो नहीं सुनेगा। और फिर छुपाने तो उस लगेगा। टाइम Yeah. छुपाएगा।
अगर वो गलत भी कर रहा है ना, आज भी लाइक माय चिल्ड्रन यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग विथ मी, like they are in now IIT, there is weed in their hostel, weed and drugs and everything is there, but जब वो drugs and weed भी उनके सामने आता है, they discuss with me the things. So वो एक ओपन स्पेस होना चाहिए उनके पास कि अगर मैं मम्मी को बताऊंगा या बताऊंगी तो मम्मी विल नॉट टेक इट निगेटिवली, एंड मम्मी विल गिव मी स्पेस, एंड जो भी टिप्स एंड हिंट्स है उनको हम पे विश्वास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम डिक्टेट करें ना, तुम ये नहीं कर सकते, अब हम तुमको वहां नहीं जाने देंगे. दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. करेक्ट थिंग इज देयर थिंकिंग प्रोसीजर. यू शुड हैव दैट पावर इन यू कि आप अपने बच्चों के थिंकिंग प्रोसीजर को मोल्ड करिए. तो वो बिहाइंड योर बैक ऑल्सो दे विल डिसाइड राइट थिंग, एंड दैट इज नीडेड. फैंटास्टिक, बिकॉज आप तो हमेशा तो रहोगे नहीं, और यू नो और ये चीजें बड़ी टेम्पटिंग होती हैं, और एक बार गलत लत पड़ गई देन इट इज यू कांट कंट्रोल. पता होता है गलत है, स्टिल पीपल डू राइट. सो आई थिंक इवन पेरेंट्स, पेरेंट्स इवन ये फेस भी करते हैं कि जब बच्चों को किसी गलत एडिक्शन में या हैबिट में चले जाते हैं, उसमें से भी हमको वापस लाना है. दैट इज ऑल्सो देयर. पर मैम अभी आपने जैसे बोला कि बच्चे जब डिस्टर्ब हुआ आप केयरफुली देखें ऑब्वियसली, बट कभी कभी जैसे आई एम अ वर्किंग मदर, कभी कभी उतना टाइम नहीं दे पाते बच्चे को. सो व्हाट आर दी कॉमन सिम्टम्स यू विल से कि जब आपको लगे कि बच्चा डिस्टर्ब है, मतलब ऐसा आउट ऑफ फोकस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि वो हमको दिख जाता है कि उसका स्टडीज प्रायोरिटी है अभी, या फ्रेंड्स है, या आउटिंग पे है, जाना है, बाहर जाना है फ्रेंड्स लोग के साथ, नीचे जाना है बिल्डिंग में खेलने के लिए. तो वो दैट यू कैन सी कि वो किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है. लाइक 11th-12th में तो जब हायर स्टडीज के लिए बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं, उस टाइम तो ऑल द टाइम उनका फोकस स्टडीज पे होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के प्रोग्राम बना रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं, देन समथिंग रॉन्ग. या अदर थिंग. कई बच्चों का डिस्ट्रैक्शन इससे हॉबीज से भी होता है, स्पोर्ट्स से, डांस से. तो व्हाट आई यूज टू टेल टू माय क्लाइंट्स कि अगर आपके बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट बैड. ये नहीं कि एकेडमिकली ही बच्चा अच्छा होना चाहिए, बट देन द चाइल्ड शुड डू द बेस्ट इन दैट थिंग. जो भी चीज करे अगर बच्चा, इट इज गुड, बट देन उसको पहले से उसी चीज में लगाइए. उसका सारा फोकस, उसका सारा जो भी कैलिबर है वो उसमें लगे, एंड ही और शी शुड गिव द बेस्ट इन दैट थिंग एटलीस्ट. ये तो ये होता है कि ना एकेडमिकली करता है बच्चा और ना उसमें बेस्ट करता है. अब आज तो इतनी सारी चीजें, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में, डांस में जाना चाहता है तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कि उसमें बच्चे जाकर बेस्ट अपना दे सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फोकस, हार्ड वर्क. ये जो हम क्वालिटीज सुनते हैं पहले से, वो चीजें उनमें होनी चाहिए, और उसके लिए पेरेंट्स को जो सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को. सो व्हेन यू डेवलप दोस क्वालिटीज. सो व्हेन योर चिल्ड्रन आर डूइंग हायर एजुकेशन, मतलब 11th-12th में, तो उनका रूटीन कैसा था? वो जब उनको बीच में थोड़ा रिलैक्स होना होता था या ब्रेक लेनी होती थी तो क्या करते थे? उनका रूटीन कैसा था, और आप कैसे उसको सपोर्ट करते थे? या दोनों बच्चों का अलग अलग था. लाइक एक थोड़ा सोशल ज्यादा है, एक अपना अकेले में रह के डॉटर जो है वो फोकस कर लेती है. She wants to stay alone. अपना रूम में फ्रेश भी हो जाती है म्यूजिक सुनते हुए, और जो बेटा है वो थोड़ा घर में बाहर निकलेगा, सबसे बातचीत करेगा, खाएगा पिएगा, ऐसे फ्रेश हो जाता है. बट ये कहूँ 12th में जब इन लोग ने प्रिपरेशन किया अपना फॉर जेई, तो दोनों बस पढ़ते हुए ही दिखते थे. लाइक सॉल्विंग 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 प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम. और ये भी है कि जब 11th-12th में होते हैं ना बच्चे, जब प्रिपेयर कर रहे हैं, एट दैट टाइम थोड़े थोड़े टाइम में उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको थॉरोली देखना चाहिए पेरेंट्स को. उन रिजल्ट्स में दिख जाता है कि हाउ दे आर डूइंग. जो एग्जाम्स होती है इंस्टीट्यूट में, उसमें आपको दिख जाता है कि वो ऑल इंडिया लेवल पे भी कैसा कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं. इन एवरी 2 months देयर यूज्ड टू बी एग्जाम, तो उसमें दिख जाता है उनकी प्रोग्रेस जब जब हम बेस्ट के लिए टारगेट कर रहा होता है ना बच्चा, तो उस टाइम तो सिर्फ पढ़ते हुए दिखता है. बहुत कम सोते हैं, 2 घंटे में उठा देना, इवन इन द नाइट ऑल्सो ऐसे भी करते हैं. तो आप उनके साथ ही जागते थे, सोते थे सब? ऐसे करना नहीं पड़ा. नहीं, अलार्म लगा के सोने लग गए, अलार्म लगा के, और उनको उतना अपना वो रहता था कि उठना है. इवन जब होल नाइट भी जागते,
9th 10th में दे यूज टू स्टडी इन ICSC, तो उनका कोर्स फिनिश ही नहीं होता था, तो वो लोग पूरी रात जागते थे और मेरे से देखा नहीं जाता था, बट होल नाइट एंड सुबह रेडी होके एग्जाम देने जाते थे। सो मैंने तो यही देखा बच्चों में कि फोकस अगर बच्चा खुद होगा ना, उसी में हेल्प किया जाए, तो यू विल गेट द रिजल्ट। व्हाट यू सेइंग इज एग्जैक्टली वो बच्चे के मन में होता है। अगर अपन डिक्टेट करके कंट्रोल करके उनको बोले कि नहीं आपको पढ़ना है, वो कभी नहीं आएगा। इट हैज टू बी फ्रॉम विद इन। जब वो फील करते नहीं हमें अचीव करना है, हमें कुछ करना है इन अ पॉजिटिव वे। फैंटास्टिक मैम, फैंटास्टिक। दैट इज इम्पोर्टेंट। द थिंग इज उनको आप ये हैबिट लगा दो, रिजल्ट जो आता है उसकी हैबिट लगा दो। जब लाइक छोटे थे ना, PP1 PP2 क्लास 1 2 3 4 5, तब तक उनका रिजल्ट लाइक 97%, 96%, 98%। तो जब वो डाउन जाता है ना, वो खुद देख नहीं पाते उसको, उस चीज की हैबिट लगा दो। मेरे क्लाइंट हैं, उनका बच्चे का यही प्रॉब्लम था, जैसे डाउन रिजल्ट जाता था वो डिसअपॉइंट हो जाता था। तो वो पेरेंट्स जो है मेरे से उसका काउंसलिंग करवाते थे कि ये प्रॉब्लम है। तो ये हैबिट अगर बच्चों को लग जाए ना, अवार्ड्स की, रिवॉर्ड्स की, और ये, तो बच्चे खुद ही नहीं छोड़ते उस चीज को। एब्सोल्युटली वेल सेड मैम। तो वही मैं कहती कि वो उनको फोकस वहां हो जाता है, वो भी अपना गोल देखते हैं और उनको भी समझ में आता है कि द सक्सेस इज डजंट कम इजीली, दे हैव टू वर्क हार्ड। और यू नो एंड आई थिंक दैट हैज पेड ऑफ सो वेल। But as you mentioned, जैसे 11th में they got distracted with gadgets and all that. So how did you, see if you ask me, I have young children. So what I do to मतलब उनको गैजेट से दूर रखने के लिए, आई बाय लॉट ऑफ गेम्स फॉर देम, बोर्ड गेम्स, बुक्स वगैरह। हालांकि दे डोंट मतलब आफ्टर सम टाइम दे विल डेफिनेटली गो बैक टू टीवी टाइम, बट आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देम कि चलो गेम्स, खूब सारे गेम्स या बुक्स ला कर दिए सो दैट यू नो दे डू दैट। बट it doesn't happen. So how did you in class 11 12, obviously you can't afford to you know tell them to have a hobby or something. So how did you take them from that addiction of say gadgets and all that, and which made them land in IITs in first shot? या नो, देयर इज ऑल्सो द थिंग दैट रूल्स, देखिए डिक्टेट नहीं कर सकते, बट रूल्स एंड ऑल उनके साथ बैठ के बनाती थी मैं Okay. कि योर रिजल्ट इज गोइंग डाउन, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट डू यू थिंक। मैं खुद ना बोल के, दिस इज कॉल्ड कोचिंग। जो कोचिंग में क्या होता है कि हम क्वेश्चनिंग करके बच्चे को खुद ही सोचने लगाओ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो वो जब चॉकआउट करेगा कि हाँ मेरा रीजन तो ये है कि मेरा टाइम जो है ज्यादा टीवी देखने में जा रहा है, या आजकल बच्चे शायद टीवी से ज्यादा गैजेट्स ही करते हैं, वीडियो गेम्स एंड गैजेट्स एंड ऑल। इंटरनेट भी काफी डिस्ट्रैक्ट करता है। सो जब उनको सोचने लगाती थी मैं बैठ के कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो वो अपने ही चॉकआउट करते थे। उसके बाद 11th में उसने यही किया कि मम्मी मेरा गैजेट आप रख लो और मुझे वो वाला मोबाइल दे दो जो ड्राइवर लोग रखते हैं, Oh, lovely. सो Basic. मेक कॉल्स। सो द थिंग इज कि बच्चा खुद ही सोचे उस चीज को, अंदर से ऐसे एनकरेज उनको करना पड़ेगा, तो दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। क्वेश्चनिंग करके आप उनको बोलिए मत, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करिए, व्हाट इज दिस थिंग, अगर ये रिजल्ट आएगा तो व्हाट विल, क्या तुम वो टारगेट अपना अचीव कर पाओगे, तो अपने आप ही सोच के बोलेगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो इन दैट वे दे गेट एनकरेज्ड। मैम एक और एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन अपने को, सी आई नो वेरी वेल कि टू लैंड इन IIT और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर, हम लोग को एक्सेसिव रीडिंग करना होता है, मे बी 10 12 15 16 आवर्स, विच इज इम्पोर्टेंट, राइट? उस वक्त जब एंड यू नो अंटिल द रिजल्ट कम्स, आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी अफेक्ट होती है, बिकॉज एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई हैव सम एंजाइटी, राइट? तो मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। प्लस व्हेन आई एम जस्ट सिटिंग रीडिंग फॉर 15 16 आवर्स अ डे, ठीक है, मेरे फिजिकल फिटनेस पे भी देर इज दिस थिंग। सो हाउ डिड यू मैनेज? मतलब आपके बच्चे घंटों घंटों जब पढ़ते थे, ऑब्वियसली उनके पास शायद अपनी फिजिकल फिटनेस या शायद मेंटल फिटनेस के लिए टाइम नहीं था, बट टू कीप देमसेल्फ सेन, वो जो एंजाइटी से क्या, वर दे लाइक इनटू मेडिटेशन, और उन्होंने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे अपना बैलेंस करा? नो सी, आई ट्राइड वेरी मच कि वो लोग मेडिटेशन करे, योगा करे, बट नहीं, उतना नहीं करते हैं वो, नहीं करते हैं। बट मैंने ये किया कि मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही प्लेजेंट, ऑलवेज प्लेजेंट, पॉजिटिव एंड लाइक हंसी मजाक, लाइट रखिए उसको। सो जो बर्डन फील होता है ना, वो बच्चों को नहीं फील होता है फिर।
अगर आपके साथ उनका रिलेशन हेल्दी है, पॉजिटिव है, लविंग है, तो वो प्रेशर काफी कम हो जाता है। क्योंकि बच्चे ये तो सुनते नहीं है कि वॉक पे जाएं इवनिंग में। इवन अगर हम लोग ये कहें कि थोड़ी प्रेयर कर लो, मंदिर में, ये भगवान में विश्वास, ये सब जबरदस्ती तो आता ही नहीं है। हमारे बोलने से नहीं होता है वो चीज, अपने आप ही आती है। बट हम यही कर सकते हैं कि घर का जो एटमोसफेयर है उसको हम स्टडीज के लिए मोस्ट सुटेबल रखें, स्टडीज के लिए, कि उनको कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो उनके रूम में। लाइक मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। तो मेरी क्लाइंट अभी लास्ट टाइम आई थी, शी इज इन 11th, वो डॉटर जो है, बेटी जो है 11th में है, उससे कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट व्हेन शी यूज टू सिट फॉर द स्टडी, तो वो लोग उस एटमोसफेयर को इतना डिस्टर्ब रखते हैं, उस बच्चे का ध्यान ही पढ़ाई में लगता ही नहीं है। सो हमको सपोर्ट करना, बच्चों को सपोर्ट करना, इट मीन्स के उनको वैसा एटमोसफियर दीजिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। घर का एटमोसफियर पॉजिटिव प्लेजेंट रखें, और हम खुद भी हार्ड वर्किंग हो। लाइक द थिंग्स हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिसको देख के बच्चे भी सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का एटमोसफियर ऐसा रखिए कि बच्चा फ्रेश रहे। आपकी अपने वाइब्स भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे फ्रेश रहे। आई अंडरस्टैंड। तो वो पूरी ऑरा, पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा, हैप्पी और होगा। या सो बच्चों को पता है कि कोई वेरी बात नहीं, कुछ भी बेनिफिट। नहीं होगा, आई हैव अ फैमिली हु इज बैकिंग मी अप, एंड दे आर नॉट फोर्सिंग मी, स्ट्रेसिंग मी। बट टेल मी वन थिंग, आई एम जस्ट सेइंग, आपको दिख रहा था आपके बच्चे ब्राइट हैं, और एवरी मदर ड्रीम्स ऑफ व्हाट यू हैव एक्चुअली अचीव्ड इन रियल। बट आपने कभी बोला कि आई वांट यू टू गो इन आईआईटी? आपने कभी अपने ड्रीम्स उनको बताया कि नहीं नहीं, आई वॉज ट्राइंग। जब मैंने मेरे बेटे को बताया कि आईआईटी समथिंग, उसको तो पता भी नहीं था क्लास 9 10th में कि आईआईटी कुछ चीज होती है, उसको नहीं पता था। टारगेट मेरा ही था वो। बट मैंने ऑलवेज वो एक वो विंडो ओपन रखी थी कि कभी अगर नहीं जा पाए तो उसके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हुआ, वो नहीं आना चाहिए। वो विंडो ऑलवेज ओपन रखनी है। इवन मुझे नहीं लगता कि मैंने एक बार भी ये बोला होगा कि तुमको जाना है आईआईटी में, या मेरा ड्रीम है कि तुम जाओ। ऐसे नहीं किया मैंने, बिकॉज अगर वो नहीं गया इन केस, तो उस वक्त वो शैटर हो जाएगा कि मैं कर नहीं पाया, आई एम अ फेल्यूर। सो उस चीज की तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन चिंता थी? रहता था। तो आई ऑलवेज यूज टू से कि हम टारगेट करते हैं, चलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, और कर लेंगे। सो वो होप्स जो है वो हमेशा रहे बच्चों को, और कभी ये ना लगे कि हमने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा नहीं किया। करेक्ट। अगर बच्चा इन केस अगर इमोशनल है, तो उसको वो चीज बहुत टच करेगी। बैकफायर हो जाएगा। नहीं, आई हम्म। ऑल्सो टेल माई तो चिल्ड्रन कि जैसे वो कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है उसके लेवल पे, ओलंपियाड वगैरह, तो बोलता है मेरा नहीं हुआ। तो आई ऑलवेज टेल हिम कि देख बेटा, लाइफ इज गुड, तेरा हो जाता है तो लाइफ विल बी लिटिल बेटर, अदरवाइज अच्छी तो है ही ना जिंदगी, समथिंग लाइक दैट, कि अच्छी तो चल ही रही है। तो आई थिंक दैट दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन, उसको वो हिम्मत देना कि कोई कोई बात नहीं। एंड इवन टुडे मतलब आई, वो जो, सॉरी, नहीं, तो मैं उनको आज भी आई रिवॉर्ड देम फॉर देयर हार्ड वर्क, नॉट फॉर द आउटकम। मतलब ऐसा है कि जैसे या मैंने देखा कि अच्छा तूने मेहनत एग्जैक्टली करी, तो एग्जैक्टली। आई ट्राई टू रिवॉर्ड हिम। मैंने कहा नंबर्स डजंट मैटर टू मी, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज दैट या इज इन आवर कैपेसिटी। आगे उस वक्त यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, या टफ पेपर आ गया या समथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट व्हाट इज इन आवर कंट्रोल इज वर्किंग हार्ड, दैट यू हैव डन, एंड लेट्स सेलिब्रेट दैट। सो दैट इज हाउ आई ट्राई टू। एक्चुअली मुझे लग रहा है एजुकेशन का मीनिंग भी वो है, यही है कि जो क्वालिटीज होती है ना, हार्ड वर्क, फोकस, कोऑपरेशन, ये जो सब क्वालिटीज होती है ये डेवलप होनी चाहिए बच्चे में। नंबर्स एंड रिजल्ट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट। वही सिखाना भी चाहिए बच्चों को कि इन केस डिग्री अगर वो नहीं भी मिलती है, कई बार आप देखेंगे कि अगर नहीं भी मिली है डिग्री, बट स्टिल जो पर्सन है वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में एंड बिकॉज ऑफ हिज ट्रेड्स। एंड अदर वे अराउंड, आईआईटी होने के बाद भी डजंट गारंटी दैट यू विल बी हैप्पी। या या सो एज अरे एन लोग आधे इंडिविजुअल, में भी छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, आधे में छोड़ देते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। हाँ, so, दोनों ही बात है। सो फैंटास्टिक। क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, क्वालिटीज दैट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट। सो मैम, जस्ट टू सम अप जो अभी तक हमने बोला ऑन आर टॉपिक विच आर डिस्कसिंग, थी हाउ टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन हायर एजुकेशन। जो मुझे सबसे अच्छा आपका रूल लगा कि वी शुड नॉट बी कंट्रोलिंग और डिक्टेटिंग पेरेंट्स, हमको उनको समझना चाहिए, हमें उन्हें एक अपना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, और उनकी एटलीस्ट जब वो यंग हो तो उनकी टीचर्स से एक वन ऑन वन हमारा
होना चाहिए, बिकॉज दे नो बेटर, क्योंकि हम इतना रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे सामने है। सो इफ दे आर डिस्टर्ब्ड, इफ दे आर शोइंग एनी सिम्टम्स, और जैसा आपने बोला कि एनी डिसइंटरेस्ट इफ दे हैव, तो वी नीड टू चेक कि क्यों हो रहा है, इज इट सम हेल्थ इशू और इज देयर समथिंग विच इज ट्रबलिंग, सो वी शुड सिट विद देम और उनको अपना टाइम देना चाहिए। एंड विच इज ऑफन सेड ऑल्सो कि उनको कपड़े खिलौने दे विल ओवर ग्रो बट योर लव दे विल नॉट, राइट? सो आई थिंक बच्चों को आजकल वो प्यार, वो सपोर्ट चाहिए कि उनको पता है कि नहीं भी हुआ तो फॉल बैक करने के लिए कुछ है। और आपने जो सबसे अच्छा बोला कि एक पॉजिटिव और हेल्दी अगर घर होगा तो वेदर दे गेट अ डिग्री और नॉट, बट एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी प्रोफेशनल्स और से हैप्पी ह्यूमन बीइंग। So ma'am, thank you very much. With this, before we end, a small rapid fire with you. There is so much to learn from you and so many questions, but a quick rapid fire. So, what angers you? What gives hope to you? मतलब आपको कौन सी चीज गुस्सा दिलाती है और कौन सी चीज से आपको होप रहती है? एंगर तो देखिए, पेरेंटिंग में एंगर इज नॉट अलाउड, सो पेरेंटिंग में तो मुझे एंगर नहीं आता है, बट जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं उस वक्त मुझे एंग्री तब फील होता है जब बच्चे में कोई निगेटिव चीज दिखती है और पेरेंट्स उसका ब्लेम बच्चे पर करते हैं। Oh, सो दैट एंगर्स मी, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि बच्चे का नहीं, आपका फॉल्ट है। okay. सो दैट एंगर्स मी। एंड होप मुझे तब होती है जब मदर एंड फादर दोनों डेडिकेटेड होते हैं। अगर दोनों डेडिकेटेड होंगे ना तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। Oh, fantastic. एक क्विक एडवाइस आप दें जब लोगों को सेल्फ डाउट होता है या जब रिजेक्शन फेस करते हैं, मतलब आजकल इतना पीयर प्रेशर है, ना चाहते हुए भी, चाहे मैं भी कितना आपको फिलोसॉफिकल बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है अरे यार ये बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, शायद मैं बोलूँ ना बोलूँ, मतलब डीप इनसाइड इज लाइक कि तो इस तरह के जब रिजेक्शंस होते हैं तो एज अ पेरेंट आपको भी शायद कभी हुए होंगे, या तो वो आपने कैसे डील करा, या जैसे आप जो बोल रहे थे बच्चे का जब रिजल्ट डिप हुआ तो वो रिजेक्शंस आपने कैसे डील करें? देखिए, पहले तो मैं उसमें रीजनिंग में जाती हूँ कि अगर डाउनफॉल हो रहा है, सबसे पहले रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट कि रूट कहाँ है इस चीज का। रूट कॉज। जब जब बेटे का ऐसा रिजल्ट डाउन हुआ तो मैंने पूरा यही रिसर्च किया स्कूल में जाके उसके टीचर से, प्रिंसिपल से, कि वाई ये रिजल्ट क्यों डाउन हुआ इसका। सो रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट। देन मेक प्लान, डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना है, इम्प्रूवमेंट के लिए ना। आफ्टर रिसर्च यू चेक आउट एंड देन मेक प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, स्टिक विद दैट प्लान एंड डोंट गेट डिस्टर्ब नहीं होना है। लाइक हमारा जो साइक है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कीप कूल, मेक प्लान एंड स्टिक विद दैट प्लान। करेक्ट। पर मैम आप कह रहे हैं कि एंगर हैज नो प्लेस इन पेरेंटिंग। मैं भी अपने आप को रोज समझाती हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंग्री ऑन माय चिल्ड्रन, बट कुछ ना कुछ हो जाता है, टू यंग बॉयज विद वर्क थिंग्स गेट ओवरवेलमिंग। तो आई एम श्योर जब आपके बच्चे छोटे होंगे, एक अपने अपने को फैमिली में भी लोग आते जाते रहते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब या ऑफिस की वजह से, तो कभी ना कभी आई एम श्योर आपके भी बैड डेज रहे होंगे। तो उस वक्त भी आपने अपने एंगर को कैसे कंट्रोल किया, मतलब हाउ डिड यू? बहुत ही कम, बहुत ही कम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि अगर बच्चा कुछ भी करता है, अगर मेरा बच्चा कुछ गलत भी करता है तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंटिंग में कुछ गलती रह गई, तभी ऐसे कर रहा है, कि मैंने क्या चीज इसको नहीं समझाई। तो जब ये छोटे छोटे थे उस वक्त तो मुझे बिल्कुल ये लगता था कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर, समवेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे एंगर नहीं आता था। मैं उनको ये लाइक जो हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं ना, हम वो टिप्स उनको दे सकते हैं, हम उनको सोचने लगा सकते हैं कि आप तुम्हारा बिहेवियर रॉन्ग हो रहा है। बट एंगर से ना वो रिजल्ट नहीं मिलता है हमको। अगर हम एंगर करेंगे तो बच्चे भी एंगर करते हैं, whether they show it or not, बट अंदर में उनके भी एंगर ही आता है। वी आर टीचिंग देम कि एंगर होता है, क्योंकि हम बाद में उसको वैलिडेट भी करेंगे। अगर हम कभी गलत गुस्सा करते हैं, समटाइम्स मेरे बच्चे याद करते हैं 1 या 2 बार मैंने उनपे गुस्सा किया था, लाइक जोर से ऐसी चीज वो करना, मम्मी आपने उस वक्त वो बटर का डब्बा वंस और ट्वाइस मैंने किया है एंगर, बट वो याद करते हैं उस चीज को। बट देखो, हमको बाद में उसको वैलिडेट करना पड़ता है, क्या वो राइट था, बिकॉज द सिचुएशन वॉज लाइक दैट। तो वी आर टीचिंग देम दैट थिंग कि एंगर होता है। आई थिंक अबाउट एंगर, we should not validate our anger, though we should validate others anger.
ये रूल होना चाहिए लाइफ में। अपने एंगर को कभी एक्सेप्ट मत करो कि एंगर नहीं आना चाहिए, एंगर बुरी चीज है, बट दूसरों के एंगर को हमको वैलिडेट करना पड़ता है कि दिस इज ह्यूमन नेचर। I understand, ma'am. I think lot of patience is required. लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स। इफ यू Absolutely. वांट रिजल्ट ना, बहुत सारी चीजें, मैं तो कई बार क्लाइंट से कहती हूँ कि जब आप पेरेंट बनते हैं उससे पहले अपने आप को पेरेंट बना लीजिए, ऐसी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, बिकॉज आप बोलने से नहीं सिखा पाओगे। जब आप जो चीज आप दिखाओगे ना वही बच्चे सीखेंगे, So we need to बोलने से नहीं सीखेंगे। lead by example. मतलब हम अच्छा बोलें कि या अच्छा अच्छा करो और खुद ना करें तो बच्चों को वो भी समझ में आ जाता है कि मम्मी बोल रही है अच्छा करना। या कर ही नहीं पाते हैं, अगर हमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया है उस चीज में हम्म तो हम नहीं कर पाते हैं। और फिर हम उनको अदर टाइम्स भी उनको एडवाइस देम कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, दे साइलेंटली ऑब्जर्व कि देखो मम्मी कर रही है हम्म मेड के साथ या ऑफिस में फोन पे किसी के साथ, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को भी ट्रेन कर लो अगर बच्चों को चाह रहे हैं तो। अदरवाइज दे कहते हैं ना कि बच्चे हमारा ही रूप होते हैं, Absolutely. 80-90% मैच करेंगे वो बिहेवियर आपका, उसी से सीखेंगे। तो Fantastic. एटलीस्ट जब पेरेंट बन गए ना उसके बाद तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, एंगर नहीं करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ेगी। It's so lovely, ma'am. I wish हर मम्मी आपकी जैसी या आपकी जैसी पेशेंस हम सब में हो. Well, fantastic, ma'am. So, हो describe. जाता है इक्वल टारगेट ना, कम हो जाता है। I'll now make this target. So, describe yourself in 3 words. माई सेल्फ, या आई थिंक आई एम हार्ड वर्किंग, करेजियस एंड आई एम परसिवरेंट। परसिवरेंस बहुत ज्यादा है मेरे में, अगर कोई चीज मैं अचीव नहीं करती हूँ मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे लगती है, जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाई, कि उसको बार बार ट्राई करते रहो। एंड आई विश कि सब लोग करें सो दैट उनका टारगेट, दे कैन अचीव द टारगेट। Fantastic, ma'am. एंड करेजियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन के लिए मैं कहती हूँ करेजियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हम वो करेज को अपने शो करें, बट फ्रॉम इनसाइड यू शुड बी करेजियस, बिकॉज यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग अ वुमन इन इंडिया। हमको बहुत कुछ फेस करना होता है, उसके बाद अपना टारगेट अचीव करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर से हमारे अंदर उतना वो होना चाहिए करेज करने का। Absolutely. अगर सो मुझसे पूछो तो I'll describe you in 3 words: inspiring, inspiring, inspiring. वाह, थैंक यू। So, ma'am, नाइस thank you वर्ड। very much. Before we conclude, एक final message हमारे listeners के लिए. फाइनल मैसेज फॉर द मदर्स, आई शुड टेल, आजकल जो मदर्स होती है मैं कहना चाहती हूँ कि डिवोट योर टाइम। टाइम बहुत कम देते हैं हम बच्चों को, एंड वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट। सो मैसेज में मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को टाइम दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और प्रायोरिटी जो है अपनी वो बच्चों बच्चों को प्रायोरिटाइज करिए, बिकॉज एवरी मदर टुडे वांट्स रिजल्ट। रिजल्ट तो चाहिए है, बट देन अपना खुद का करियर है और सो मेनी थिंग्स है। कई मदर्स तो करियर नहीं होकर भी उतना टाइम नहीं देती है बच्चों को। सो प्रायोरिटाइज योर चिल्ड्रेन एंड फोकस ऑन योर चिल्ड्रेन एंड गिव टाइम टू देम। उनकी Absolutely. इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। उनके दिन भर में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि अगर आप बैठोगे नहीं उनके साथ एंड इफ यू विल नॉट मेक देम कंफर्टेबल, सो वो आपको बताएंगे कब अपने प्रॉब्लम्स। And with growing फॉर age, दैट, हाँ, with growing age उनकी भी definitely problems होती हैं और I think या आजकल के सिनेरियो में मैं it is मुझे very. ऐसा फील होता है कि दिन भर में उनके पास होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी के साथ कुछ हुआ है, कुछ और हुआ है, और और, व्हेन दे और विल टॉक हाँ, और इट इज हर लाइक एज और हर एज ग्रुप के लिए आई थिंक चाहे वो हर एज के छोटे हों बड़े हों और यू नो दे आर आल्सो वो ग्रोइंग इवन, विद अस. या ठीक है मैम, थैंक यू डेफिनेटली। वेरी मच. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर लिसनर्स. आई हैव लाइक 2 beautiful books in my hand: Serve the Waves and From Screen to Sky. They are must read. Do read, and these are as fabulous as you know we have Nehal ma'am with us today. So I'm sure थैंक everybody is going to learn a lot. So once again, thank you very much, ma'am, and यू वेरी thank मच। you, our dear इट्स listeners, नाइस for टू मीट joining यू, in. इट्स नाइस टू मीट यू। Thank you, ma'am. Good night. Good night, everyone. Thank you. Bye bye.